Shalom and good evening, everybody. My name is Mark, uh, and I'm speaking from the yeshiva here in India. And we gather every week to do a small shiur Bible study on the New Testament and some concepts of the New Testament that we study in depth. So today is going to be a small study on the book of Matthew, chapter 5. And we'll be also having a translation in Hindi. So please take your Bible and join us. But before we start, let's have a word of prayer. Gracious, thank you, Father. Thank you for your wonderful kindness and your compassion on us, Father. Thank you for your grace and the ability that you give us to join ourselves to you and to be one with you, Father. We want to thank you for all that you are to us. And I pray that you give us the strength and the wisdom to listen to you, to listen to your voice, to listen to your word, and to implement it in our lives, Father. This time I want to put into your precious hands. You bring us to this point that we are totally dependent on you. And we understand what you're going to share with us, what you're going to give us, and what you want us to do, Father. I pray this, Father, through your Son, Yeshua, that through him and with him and in him, we are strengthened and we are made whole. Into your precious hands, Father. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, friends, so let's turn to chapter 5 of Matthew. And we will study verse 20 onwards. और आज जो है हम मत्ती के 5वें अध्याय और 20वें वचन से जो है वो हम देखेंगे. So last time we studied about verses 18 and 19 where Jesus says, talks about breaking of the commandments and those who teach others who to break the commandments. और गए सप्ताह हमने देखा 5वें अध्याय 18-19 वचन में कि यीशु मसीह जहाँ पर सिखा रहे थे कि जो लोग जो है जो वाचा को तोड़ते हैं और दूसरे लोगों को जो है वो सिखाते हैं कि कैसे वाचा को तोड़ा जाता है. Now in verse 20 we read something very interesting. Jesus says this, "For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, you shall in no way enter into the kingdom of heaven." Please read that in Hindi. और वचन यहाँ पे कहता है 20वां वचन हम देखते हैं जो कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता क्षत्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे. So there is a certain level of righteousness that we must be able to achieve in our lives. तो एक स्तर होता है, धार्मिकता का एक स्तर होता है, हमें उस स्तर तक पहुंचना है. अपने जीवन में कुछ पाने के लिए हमें उस धार्मिकता के स्तर तक पहुंचना जरूरी है. And Jesus is indicating this to us that our righteousness must be ripe, mature righteousness, and in the fullness of what God wants us to live. और यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो हमें एक प्रकार से एक सूचना के अनुसार बता रहे, एक स्वरूप में बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो है वो पूरी तरह से जो है वो धार्मिकता की परिपूर्णता कैसी होनी चाहिए. Now in verse 21, he says, "And you have heard, and it has been said of old time, thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of judgment." Read verse 21. और 21वां वचन कहता है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा. But I say unto you, Jesus says in verse 22, but I say unto you, that means he's taking the commandment of thou shalt not kill and he's adding another spiritual level
and deeper meaning to it. और अगर हम 22 वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि तुम क्रोध ना करना, और इस बात को जो है वो एक दूसरे स्थल पर जो है यीशु मसीह गहराई के रूप में ये बात को आगे के वचन में दूसरे स्थल पे लेकर जा रहे हैं। But I say unto you that whosoever is angry with his brother without cause shall be in danger of judgment. और वचन कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। Now, this word angry without a cause is a very specific word in the Hebrew. और यहाँ पे जो हमने एक वचन देखा कि जो क्रोध करना है, जो बिना कारण जो एक क्रोध है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक हिब्रानी भाषा में ये एक बहुत एक गहराई की बात कहता है। It's called sinat chinam, mindless and baseless hatred. But how can you hate somebody or be angry with somebody without a cause? और अगर हिब्रानी भाषा के अनुसार अगर उसका अनुवाद किया जाए तो ये बात ये रहती है कि जिसमें कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिस बात के ऊपर जहाँ पे उसका कोई तत्व ही नहीं है, फिर भी उसके ऊपर जो है वो क्रोध किया जाता है। तो अगर हम देखते हैं कि क्रोध जो है वो बिना किसी कारण के क्रोध कैसे हो सकता है। If you don't hate somebody, if you don't like somebody, if you have an issue with somebody, how is it that your life can be filled or not be filled with a hatred or an aversion to somebody? और ये कैसे मुमकिन है कि अगर आप किसी से घृणा नहीं रखते हो और किसी को नापसंद नहीं करते हो, किसी के ऊपर तुम जो है वो गलत भावनाएं नहीं रखते हो, तो कैसे ये मुमकिन है कि तुम्हारी जिंदगी में जो है वो किसी के प्रति तुम जो है वो क्रोध लेकर चल सकते हो। Jesus is saying, forget about not killing. That is too far, something too great a sin. But the smaller sin, which is of more importance, is that you don't hate each other. और यीशु कहता है कि भूल जाओ कि हत्या करने वाली बात तो जो है वो बहुत दूर की है, वो बात तो हमें ध्यान में ही नहीं लाना, हत्या करने वाली। यहाँ पे तो यीशु कहता है कि हत्या को छोड़कर तुम्हें जो है वो क्रोध भी नहीं करना है, मतलब एक दूसरे को जो है वो नफरत भी नहीं करनी। Now, to be angry without a cause, Jesus is telling us a certain principle that's got to do with the imperfections of the human heart. और यहाँ पे हम देखते हैं कि बिना वजह जो क्रोध करना है वो कुछ सिद्धांतों को यीशु मसीह ने दर्शाया है कि जो एक अशुद्धता की जो तत्व है एक मनुष्य के हृदय के अंदर। When someone does not look at another person in kindness, when someone looks down upon another person because he is of a different caste, a different color, a different culture, someone looks down upon somebody else because he's rich or he's poor and have all these human weaknesses in them, that brings out a hatred in our hearts that have really no standing or cause. और ये तभी होता है जब लोग जो है वो दूसरे को जो है वो एक नम्रता से नहीं देखते, एक दया भाव से नहीं देखते, बल्कि उनको जो है वो अपने से नीचे देखते हैं, जैसे ये जो दूसरी जाति के हैं या दूसरे रंग के हैं या उनके उनके समान के ये लोग नहीं है या दूसरी जात पात की चीजें हैं, ये या तो मैं उससे ऊंचा हूँ या ये मुझसे नीचे है, ये सारी बात जो है वो सारी बातों को मिलकर उत्पन्न करता है कि किसी को बिना वजह जो है वो नफरत को वो पैदा करता है। Look at the world today. Everybody is fighting with somebody, whether they're in the parliament, in the government, in the offices, in the house, in the friends. Everybody is fighting with everybody.
अगर आज हम देखते हैं संसार की और अगर हम देखते हैं तो हर कोई जो है वो लड़ ही रहा है। अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट में भी अगर देखते हैं तो लोग लड़ाइयाँ हो रही है, पार्लियामेंट में लोग लड़ाई कर रहे हैं, घरों में जो है वो लोग लड़ रहे हैं। हर जगह अगर हम आज संसार में देख रहे हैं तो हर जगह एक लड़ाई का ही एक माहौल हम देख पाते हैं। But I'll tell you, friends, Jesus is not talking about this because if those people are bad, they will do such things. He's talking about you and me who are not supposed to be indulging in these things. और यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो संसार के उन लोगों की बातें नहीं कर रहा है। अगर वो लोग अगर गलत है, खराब है तो वो उनकी तुलना यीशु मसीह नहीं कर रहा है। यहाँ पे यीशु मसीह हम जो धार्मिकता है, आप जो हो, हम जो है, यहाँ पे वो धर्मी लोगों की बात कर रहा है। He's talking to the people in the Kehillah. He's talking to the you and the me, to us, to our brothers and sisters, the people, if you want to call it the church, who are in the believing body of Christ. और यहाँ पे यीशु मसीह जो है वो आपके बारे में, हमारे बारे में, अपने बारे में, भाई बहनों के बारे में, कलीसिया के ऊपर कलीसिया के बारे में उन लोगों के लिए बात कर रहा है जो फिर से यीशु मसीह में जी उठा है और यीशु मसीह के शरीर के अंदर रहता है, मतलब यीशु मसीह रहता है, उनके लिए यीशु मसीह ये बात कर रहा है। That's why he says, whosoever is angry with his brother, not with someone of another nation, who is angry with his brother. It means he's talking about when you go to your church, your congregation, your brother who's sitting at the side of you, your sister who's sitting in the front of you, your old auntie, your mother, or an elderly person who's sitting behind you, or somebody in the church who you're connected with. He's talking to them in that context. और यीशु मसीह जो है इसलिए वो बाहर के किसी व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहा है, वो इसीलिए भाई बहनों की बात कर रहा है। वो भाई बहनों की जब हम कलीसिया में जाते हैं, जब बाजू में अपने दाहिने और भाई है, अपने बाएं और जो है वो बहन बैठी है, पीछे जो है वो आंटी बैठी है, जो हमारे आजू बाजू के जो लोग हम जो यीशु मसीह में जो भाई बहन है, यहाँ पे यीशु मसीह उन लोगों के लिए बात कर रहा है। He says, even if you say to your brother, your believing brother, that means somebody who you know in your church, you call him a fool, not because he is a fool, but you call him a fool because he is doing stupid things with his spiritual life. इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अपने उस विश्वासी भाई बहनों के लिए यीशु कहता है कि अगर तुम मूर्ख भी कह रहे हो तो वो मूर्ख इसीलिए तुम मूर्ख कह रहे हो कि उसकी आत्मिक रूप में जो है वो गलत कर रहा है और तुम अगर उसको मूर्ख कह रहे हो। Right? And then he says, even if you call him a fool, you'll be in danger of hellfire. So imagine the level and the standard that Jesus has set for our righteousness. और यीशु कहता है कि अगर तुम उनको मूर्ख कह रहे हो, तुम्हारे जो विश्वासी भाई बहन को अगर तुम मूर्ख कहते हो तो तुम जो है वो नरक की आग में जो है वो जलाए जाओगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्तर जो यीशु मसीह ने रखा है हम विश्वासियों के लिए, जिस स्तर में यीशु मसीह हमें रखते हैं, हमें वो समझना जरूरी है। That is why he says in verse 23, therefore if you bring your gift to the altar and remember that your brother has anything against you, leave your gift at the altar and go your way first and reconcile with thy brother, and then come and offer your gift. I'll give it to you. Leave your gift at the altar, go and reconcile with your brother before you. यहाँ पे हम जो है वो 23वें वचन में देखते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे। So all we have to understand is that all iniquity and sin starts with bad relationships. और हमें ये
समझना बहुत जरूरी है कि सारे अधार्मिकता, सारे जो पाप है वो ये जो है वो एक गुस्से से जो है वो चालू होते हैं। Bad relationships cause all the misunderstandings, and bad relationships with God is the root of sin. और सारे बुरे जो रिश्ते होते हैं, और ये बुरे रिश्ते जो है वो एक नींव रहती है एक पाप को उगजाने के लिए। I'm on the recording. Let it be. Okay. I want you to turn with me to the book of Thessalonians, and we're going to read something in the book of Thessalonians, the first book of Thessalonians, chapter 4. और हम जो है वो पहले थिस्सलुनीयों के चौथे अध्याय को देखेंगे। And the reason why we are going to move to the book of Thessalonians is because this is going to reflect something what Jesus is trying to tell us. और हम जो है ये अभी पहली थिस्सलुनी की किताब इसलिए देखेंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ बातें हम देखेंगे कि जो यीशु मसीह जो हमें उन बातों को जो समझा रहा है उसकी एक झलक जो है हम इस किताब में देखेंगे। What is the level of righteousness that we need to reach to, and that we need to get into our lives, that is desired of God. और हमें किस स्तर पर धार्मिकता के किस स्तर पर जो है वो हमें हमारे आत्मिक जीवन में पहुंचना है, हम वो चीजों को देखेंगे, वो चीजों पर रोशनी डालेंगे। In verse 1 in 1 Thessalonians chapter 4 it says, furthermore, then we beseech you, brethren, and exhort you by the Lord Jesus, that as you have received of us how you ought to walk and please God, so you would abound more and more. Please read that first verse. वचन कहता है, निदान हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमें से योग्य चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। By example. Sorry, actually I was not able to hear you. Yeah, even I couldn't Because hear you you. put your... No, your like it was completely blank. Yeah, you're from your side, example. More. The most important thing is to lead by example. Can't you? Hello? I'm sorry, but it was completely blank. Could you please repeat? The most important thing is to lead by example. और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जो है वो एक उदाहरण को लेकर चले। That we look at the elders and to see how they are conducting their lives, and for us to learn from it. और देखते हुए कि हमारे आगे जो हमारे जो बुजुर्ग को देखते हुए और उनसे सीखते हुए हमें हमारे जीवन में उन बातों को जो है वो लागू करनी है। That in your congregation and in wherever you are worshiping God or you're going to your church, the elders must be of a level of righteousness that reflect God's will on earth. और हम जिस सभा से जुड़े हुए हैं, जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, तो वो महत्वपूर्ण है कि हमारे जो बुजुर्ग है जो हमें सिखाने वाले हैं वो धार्मिकता के उस स्तर पर हो। This is what Paul says out here, that you have received from us. That means you have seen how we live, you have seen how we conduct ourselves, you have seen our lives and the things that we've spoken to you. Therefore, this is the way that you need to please God, and this is God's will. और
इसलिए पौलुस ने कहा था कि तुमने देखा है कि हमने हमारा जीवन जो आत्मिक जीवन जो है वो किस रूप में हमने जिया है, और तुमने उन बातों को हमारे मुंह से जो है वो उन बातों को सुना भी है। और इसलिए हम कहते हैं कि आपका भी जो आत्मिक जीवन है वो इसी प्रकार होना चाहिए। इससे ही जो है वो परमेश्वर पसंद होता है, और परमेश्वर की जो है वो यही इच्छा है। For verse 2 says, "For you know the commandments we gave you by the Lord Jesus Christ." That means he's talking about the commandments after he's talking about living by example. और इसलिए दूसरा वचन कहता है कि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं पहुंचाई है। तो ये वो आज्ञाएं है जो प्रभु यीशु के बाद जो है ये आज्ञाएं जो है वो पौलुस के द्वारा पहुंचाई गई थी। And then verse 3 says, "For this is the will of God, even और your sanctification, that you should abstain from fornication." और तीसरा वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। This fornication which he's talking about is not only a physical fornication, it's also about a spiritual fornication. और यहाँ पे जो व्यभिचार की बात हो रही है वो शारीरिक रूप से व्यभिचार की बात नहीं हो रही है, बल्कि आत्मिक रूप से भी व्यभिचार की बात हो रही है। Because more damage, spiritual impurity happens in the spiritual realms that then reflect onto the physical realm. क्योंकि जो नुकसान जो है जो आत्मिक जीवन में व्यभिचार के द्वारा जो पाप के द्वारा जो नुकसान होता है वो ज्यादा गहरा होता है, जो शारीरिक रूप के व्यभिचार के नुकसान से ज्यादा वो आत्मिक नुकसान गहरा होता है। Because the sin of fornication and spiritual prostitution is such a deep sin that God completely abhors it, He detests it. और क्योंकि आत्मिक रूप की जो पवित्रता है और व्यभिचार है, ये जो है वो बहुत गहरा जो है वो एक पाप होता है, जिसको परमेश्वर जो है वो पूरी तरह से जो है वो नकारता है। So, this fornication is about coming to worship the true God as well as living in the world and worshiping the things of the world at the same time. और ये जो पाप या व्यभिचार है वो इस रूप में है कि परमेश्वर की उपस्थिति में रह के परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हुए हम संसार की चीजों की और संसार की बातों की भी जो है वो स्तुति आराधना करते हैं, और संसार की चीजों को भी जो हम जब महत्व देते हैं। The mistake we make is bringing the things of this world into your congregation, the ways of this world into the ways of the church, into your congregation. That is the biggest mistake we make. और ये सबसे बड़ी भूल है जो हम कर बैठे हैं या हम करते हैं कि हम संसार की जो चीजें हैं, संसार के जो बातें हैं, वो हम उन बातों को हमारे कलीसिया के अंदर और हमारे आत्मिक जीवन के अंदर उन बातों को हम लेकर आते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी भूल हो जाती है। If you're a person living this world and doing secular things, and you're bringing the same value systems into the church is going to be in trouble. और अगर एक व्यक्ति जो है वो बाहर के संसार में जैसा जीवन जीता है और बाहर की जो बातें जब वो कलीसिया के अंदर वो माहौल को ले आता है, तब वो कलीसिया के लिए जो है वो एक समस्या का कारण बनता है, या जो कलीसिया जो है वो एक तकलीफ में आ जाती है। If you're doing impure things in this world, you're bringing the same impurities into the church, and everyone in the church is affected. और अगर आप जो है वो संसार में जो है वो पाप कर रहे हो और गलत बातों को कर रहे हो, और वही अशुद्धता की संसार की अशुद्धता को अगर तुम कलीसिया में लेकर आते हो, उन बातों को जब तुम कलीसिया में लेकर उस पे लागू करते हो, तो कलीसिया की जो कलीसिया से जो पूरी जुड़े हुए लोग हैं वो उन पे वो असर करती है। So we are still talking about
your relationships within the brothers, within the church, within the people who are in your community who are worshiping God. We're not talking about the outside friends. और ये बातें जो है, ये बातें वो विश्वासी भाई बहनों की है, वो कलीसिया में जुड़े हुए लोगों के लिए है। और जो भी संसार में जहाँ पे भी विश्वासी भाई बहन है या विश्वासी लोग हैं, उनके लिए ये बातें लागू हो रही है। ये बातें उनके लिए नहीं है जो संसार में है। Now, verse 4 is very, very critical. It says that every one of you should know how to keep his vessel in sanctification and in honor. और ये जो चौथा जो वचन है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो चौथा वचन जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो नाजुक वचन है। ये वचन जो कहता है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। What is the word vessel used in Hindi over there? पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र Patra is vessel, right? Yes. Patra is vessel. So what do you mean by vessel? What is this vessel that Jesus is talking, or Paul is talking about here? और हम देखते हैं ये पात्र, ये कौन से एक पात्र की बात हो रही है जहाँ पे पौलुस जो है जो हमसे बात कर रहा है। This being that you are, this physical being that you are, is also important to God. It's a vessel that is to be used for God's glory. और जो हमारे शरीर में जो स्वभाव में जो शरीर में जो हमारा है, वो जो है पौलुस हमारे शरीर को एक पात्र के रूप में जो है वो उसकी तुलना कर रहा है कि वो पात्र जो है वो पवित्र रहना कितना जरूरी है। And this हमारा vessel, शरीर जो है, sorry. And this vessel, this physical vessel, has its own beauty. It has its own talents. It has its own form, its own essence, and it's loved by God because God has created it. और ये जो पात्र जो हमारा शरीर जो है वो एक बहुत ही एक खूबसूरत चीज है, और उसके अंदर जो है वो बहुत अच्छे जो है वो गुण डाले गए हैं। वो जो है वो बहुत खूबसूरत पात्र, हमारा शरीर जो है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया है। And this vessel is something with its beauty and its character that God wants to use so that it can give him glory. और ये जो हमारा शरीर है, इसकी जो सुंदरता है और इसका जो चरित्र है, उसको परमेश्वर जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है उसकी महिमा के लिए। So we have to train ourselves, our bodies, to also be of use and productivity for honor and glory to God. और हमारा ये जो शरीर है वो हमें इस रूप में जो है वो इस्तेमाल करना है, और उसके अंदर से ऐसी बातों को जो है वो हमें उपजाना है जो परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न करे और That उसको is why महिमा दे। that is why Jesus said in Matthew 5, unless your righteousness increase more than the scribes and the Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. और इसीलिए यीशु मसीह ने जो है वो मत्ती के 5वें अध्याय में कहा है कि जब तक तुम्हारा जो धार्मिकता का स्थल है जो शास्त्री और फरीसियों के ज्यादा जो है वो बढ़कर नहीं हो जाएगा, तुम जो है वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाओगे। Now we'll come back to this. Let's go to 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 2, and we'll read something so you all will understand this a little more. 2 Timothy chapter 2, and let's read from verse 19 to 22.
Can you read that? यस, और हम जो है वो दूसरे तिमोथियो दूसरा अध्याय 19वें वचन से पढ़ेंगे। Hello. या Repeat. और वचन के हेलो या और Yes, yeah. दूसरे तिमोथियो दूसरा अध्याय 19वां वचन कहता है, तो भी परमेश्वर की पड़ी नेव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। 20वां वचन कहता है, बड़े घर में He gets 2 months, so 4 months comes so much. I'm on a recording. बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। और 21वां वचन कहता है, यदि कोई अपने आप को इन से शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। Nevertheless, the foundation of God stands in emunah. It stands in surety. Having this seal, what is the seal of the foundation of God? और Hello. sorry, hello, that was again it was blank, sir. I'm so sorry. When you finish, tell me. Can you hear me? Yes, now I can hear you. What is the foundation and what is the seal? और एक नींव क्या है और उसके बीज क्या है? The seal is this: the Lord knows them who are His. और बीज ये है कि परमेश्वर उनको जानता है जो उसके हैं। If God has started something, He will maintain it. If the Lord has made something, He will maintain it. If He has not done anything, He will not maintain anything. अगर परमेश्वर ने अगर किसी चीज की शुरुआत की है तो वो उस चीज को संभालेगा, तो वो उस चीज की देखभाल भी करेगा। पर जो चीज परमेश्वर ने शुरुआत नहीं की है वो चीज को कि वो देखभाल नहीं करेगा। So don't not fool ourselves. Think that we are. Keep the door open. Let's not fool ourselves to think that we are His. Only God knows who are His. और हम जो है वो इस मूर्खता से ना सोचे कि हम सभी जो है वो उसके हैं। सिर्फ वही जानता है कि कौन उसका है। That is why it's saying, let every man who names the name of Christ depart from sin and iniquity. और इसीलिए परमेश्वर कहता है, वचन कहता है कि हर कोई जो कहता है जो वो परमेश्वर से है, वो व्यक्ति अपने आप को हर एक अशुद्धता से, अधर्म से जो है वो अपने आप को दूर रखे। In the body of Christ, there are different types of people. Paul says, in a great house, there are many, many vessels. और यीशु मसीह के शरीर में बहुत प्रकार के जो है वो लोग होते हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा कि एक घर में जो है वो अलग अलग प्रकार के जो है वो लोग होते हैं। So we are like vessels. Some are like silver, some are like gold, some are made of wood, of stone, and each one giving glory to God. और इसीलिए हम सब जो है वो एक पात्र है, जो कोई सोने का पात्र है, कोई चांदी का पात्र है, कोई जो है वो लकड़े का पात्र है, कोई जो है वो पत्थर का पात्र है। और हर एक पात्र जो है वो परमेश्वर को जो है वो महिमा देता है। But in the great house, some are giving glory, some are not giving glory. Do not be like the ones who are not giving glory to God. और एक महान घर में जो है वो
कोई परमेश्वर को महिमा दे रहा है और कोई जो है वो परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहा है, तो हमें उसमें से नहीं होना चाहिए जो परमेश्वर को महिमा ना दे रहा हो। Therefore, it says in verse 21, if a man purge himself from all these, he shall be a vessel unto honor, separated and sanctified, and ready for the master's use. और इसीलिए 21वां वचन कहता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। Because God would have prepared him for every good work. क्योंकि परमेश्वर ने जो है वो उसको तैयार किया है हर एक भले काम के लिए। So therefore, this vessel that we are in has to be sanctified. It has to be separated from the world and the world system. और इसीलिए हम जो पात्र है, हमारा जो शरीर है, वो पूरी तरह से जो है उसमें शुद्धिकरण होना चाहिए, पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, और वो जो संसार की जो बातें हैं उससे जो है वो पूरी तरह से अलग होना चाहिए। Now let me remind you of Matthew chapter 5 verse 20 and 21 and 22. Jesus talks about righteousness, then he talks about thou shalt not kill, and he tells us what is greater than thou shalt not kill is that to have a bad relationship with your brother. और हम फिर से जो है वो उस अध्याय को याद करेंगे कि मत्ती के 5वें अध्याय 20, 21, 22 वचन में 3 बातों को हमने देखा। पहले जो है वो यीशु मसीह ने धार्मिकता की बात की, उसके बाद यीशु मसीह ने हत्या की बात की, और उसके बाद यीशु मसीह ने जो है वो क्रोध की बात की कि किसी को जो है वो बिना कारण जो है अपने भाई पे जो है वो कभी क्रोध नहीं होना चाहिए। So we are still talking about your brothers and sisters within your church or your congregation. Okay? Are you all understanding now what I'm trying to tell you? और अभी तक हम उन्हीं लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो सब हम मसीह में है, जो भाई बहन हम जो मसीह में है, उन लोगों की बात हम कर रहे हैं। So then he says, therefore, it's very important to understand in verse 22 of Timothy says, flee from all these youthful lusts and follow righteousness. Pursue righteousness, faith, charity, and peace with them that call upon the name of the Lord. Verse 22. 2 Timothy 2 verse 22. और दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 22वां वचन कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। Is it talking about the world outside? Is it talking about the nations? No, it's talking about you having a good relationship with those who call upon the name of the Lord. और ये जो है वो संसार की लोगों की बात नहीं कर रहा है, ये जो है जो बाहर पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये बात उन लोगों के लिए कर रहा है जो परमेश्वर का नाम लेते हैं। Now go back to the first book of Thessalonians, chapter 4. और हम जो है वो फिर से पहले थिस्सलुनीस की किताब देखेंगे, 4था अध्याय Verse देखते हैं 6, read verse 6. और 6ठा वचन हम पढ़ते हैं। और Read वचन verse कहता 6. है, वचन कहता है कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे और न उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसे कि हमने पहले तुमसे कहा है और चेताया भी था। It says, do not defraud your brother. Who's your brother? Someone who worships you with you in church, not somebody who's outside your church. और जैसे यहाँ पे वचन कहता है कि अपने भाई को ना ठग, तो ये किस भाई की बात कर रहा है? वो भाई जो हमारे साथ हमारे कलीसिया में या हम मसीह में जो हमारा भाई है उसकी बात कर रहा है, ना कि जो मसीह के बाहर जो भाई है उसकी बात नहीं हो रही। Verse 7, for God has not called us unto unrighteousness, unto uncleanness, but unto holiness. और 7वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है।
So if you think you hate your brother or sister in your church for reasons which are not right, or if you hate them at all, you're despising God's Holy Spirit that is given to that person. और इसलिए कि तुम जब किसी बिना वजह के तुम्हारे भाई बहन जो कलीसिया में है, जो मसीह में है, जो परमेश्वर में है, अगर तुम उनको उनसे जो घृणा करते हो, अगर तुम उनसे नफरत करते हो किसी बिना कारण के या बिना वजह के, तो तुम जो है वो उससे घृणा करते हो, उस पवित्र आत्मा से करते हो जो उस व्यक्ति के अंदर है. That means you're sinning against God, not against that person only. और इसका मतलब ये है कि तुम उस परमेश्वर के खिलाफ जो है वो पाप कर रहे हो जो उस व्यक्ति के जीवन में है. And then verse 9 says, but as touching brotherly love, you need not that I write unto you, for you yourselves are taught of God to love one another. Who teaches us to love one another? It is God, nobody else. और 9वां वचन कहता है, किंतु भाईचारे के प्रति के विषय में यह अवश्य नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है. तो यहाँ पे प्यार करना या प्रेम करना कोई और नहीं सिखा रहा है, परमेश्वर खुद हमें सिखा रहा है. And then verse 11 says, and you study to be quiet. That means we have to pursue knowledge, understanding, wisdom, study the scriptures for our own benefit. और इससे 11 वचन कहता है, और जैसे हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसा ही चुपचाप रहना और अपना कामकाज करना और अपने हाथों के कामों का प्रयत्न करना. तो यहाँ पे हमें जो है खुद ही जो है उन बातों के लिए दौड़ लगानी है, उस सोच के लिए उस बुद्धि हमें प्राप्त करनी है, वो समझदारी हमें हमारे जीवन में प्राप्त करनी है, और उन चीजों के लिए जो है वो हमें दौड़ लगानी है. We have to pursue righteousness, work with our own hands, support ourselves. Okay? Too many people are out in this world trying to do ministry when God has not called them. और could you please repeat the last line? Too many people are out in this world doing ministry even though God has not called them. और इससे हमें जो है उस चीज की जो है समझदारी के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है. हमें उन बातों को जो है वो समझदारी के स्तर पर अपने आप को जो है वो बातों को समझना है और पाना है, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सेविकाएं कर रहे हैं, पर परमेश्वर ने जो है उनको बुलावट नहीं दी है. If God has not set that ministry for you, God is not going to maintain it. और अगर परमेश्वर ने वो सेविकाएं अगर आपके लिए नहीं रखी है या नहीं बनाई है, तो परमेश्वर उस सेविकाएं की जो है वो देखभाल नहीं करेगा. And if you're doing things that God has not asked you to do, you're only setting up unrighteousness in your soul. और अगर हम उन बातों को करते हैं जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए नहीं रखी है, तो हम जो है वो हमारी आत्मा के अंदर जो है वो अधर्मिकता के काम करते हैं. That is why I've seen many souls who have gone down this path and have destroyed their lives. They are neither in ministry today, neither are they doing productivity in the common world. और हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनकी बुलावट नहीं थी, और जहाँ पे उन लोग ने अपनी सेविकाई चालू की, और आज अगर हम उन लोगों को देखते हैं तो ना उनके पास अभी कोई सेविकाएं है, या ना उन्होंने कोई ऐसे अच्छे कार्य संसार में भी कुछ फलवंत कार्य को नहीं कर पाए. You can be a person who worships God with a pure heart, as well as lives a productive life in this world. It is great honor to God, and it's a good testimony to those people who are outside the church.
और ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि हम जो है वो पूरी तरह से धार्मिकता में रहे, परमेश्वर की स्तुति आराधना में रहे और संसार में भी हम जो है वो अच्छी बातों की उपज को कर सके या अच्छी बातों को उत्पन्न कर सके। तो ये बहुत ही बड़ी परमेश्वर की महिमा होती है और ये एक अच्छी गवाही होती है उन लोगों के लिए जो इस संसार में है, जो विश्वासी नहीं है बल्कि जो संसार में है, उनके लिए ये अच्छी गवाही होगी। When they look at our lives, our productivity, our faith in God, our purity of heart, and look at how God has blessed us, they will bless our God. और जब वो लोग हमारे अंदर ये सारी गुणों को देखेंगे और जो चीज अच्छी चीज है जो हम उत्पन्न करते हैं हमारे संसारिक जीवन में और जो हमारे अंदर की जो हृदय की जो शुद्धता है, जो पवित्रता है और जो हमारे आत्मिक जीवन है, इन सारी बातों को जब वो देखेंगे कि हमारा जो परमेश्वर में विश्वास भी है, ये सारी बातों को जब वो देखेंगे तब वो हमारे परमेश्वर को जो है वो महिमा देंगे। This, my friends, is not what those scribes and Pharisees were doing in chapter 5. That's why Jesus said, if your righteousness is greater than this, you will enter into the kingdom of heaven. और इसलिए ये वो धार्मिकता की बात हो रही जहाँ पे यीशु मसीह ने 5वें अध्याय में कहा है कि तुम्हें फरीसियों जैसी जो है वो स्तर पर नहीं रहना है बल्कि तुम्हारी धार्मिकता उनसे कहीं आगे बढ़नी चाहिए। Now, all that we have studied, friends, listen, all that we have studied is a qualification of what Paul is going to write next. So qualification For what Paul is going to write in the next verses. और ये सारी बातें जो है वो हमने जो पढ़ी है वो एक प्रकार का एक प्रमाण पत्र रहेगा जो पौलुस ने जो है वो आगे की वचन में जो बातों को कहा है उसका। Now read verse 13 and 14. Second Timothy 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 and 14. और हम पहले थिस्सलुनीके का 4 अध्याय 13वां और 4था वचन देखते हैं। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम प्रतीत करते हैं कि यीशु मरा जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। Why is Paul writing this out here after all that we've studied? और क्यों ये पौलुस ने जो है ये बातें यहाँ पे लिखी है जब हम उन सारी बातों को जो है वो पढ़ चुके हैं? Because he's telling us there is a certain qualification of righteousness that is required what we are reading. क्योंकि हमें जो है वो कुछ प्रकार का जो है वो सीखना है, उस क्वालिफिकेशन को, उस तल को जो है वो समझना है। ये बातों को जो हम आगे पढ़ते हैं उसके लिए उस क्वालिफिकेशन को जानना होना जरूरी है। Verse 15, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. और 15वां वचन कहता है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। He's talking about the resurrection of the dead because he's telling us if you want to be part of this resurrection, if you want to achieve this resurrection, and if you are alive when the Lord comes, you need all that we've studied today. The qualification is this. That is why he's mentioning the resurrection here. और ये फिर से जब जी उठने की जो बात है कि जब हम फिर से जो है वो कब्र में से जब हम पूरी फिर से जब जी उठेंगे तो उन बातों को पाने के लिए, उस
शिक्षा की जो क्वालिफिकेशन जो पौलुस ने जो पहले बताई, वो शिक्षा को प्राप्त करना और उसको समझना जो है वो जरूरी है। That is why he says, "For the Lord shall descend from the heaven with a shout, the voice of an archangel, and the trumpet of God, and the dead shall rise first, because they have all been qualified according to the righteousness of what Paul is trying to tell us." और इसीलिए वचन कहता है कि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। Paul is not trying to tell us this for us to make this into a resurrection theology. और पौलुस जो है वो ये नहीं कहता है कि फिर से पुनरुत्थान की जो है वो फिर से जी उठने की जो है वो एक परिभाषा को जो है वो नहीं बता रहा है। He's telling us this is going to happen, but he's telling us that for you to be a part of this, you have to have some kind of purity and sanctification, holiness, and righteous living. पौलुस उस बात के लिए ये बात बता रहा है कि ये बात को हमें देखने के लिए फिर से जो है वो जी उठने की बात को समझने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम उस शुद्धता को, उस धार्मिकता को, उन पवित्रता की जो बातें हैं उसकी शिक्षा का एक जो है वो प्रमाण पत्र एक हम समझे और उससे सीखे और उससे शिक्षा प्राप्त करें। So all that the church has understood about these verses about the resurrection theology, and everyone fights about the resurrection theology, it's simply a statement Paul is making for us to be ready to be a part of that whenever it happens, by way of preparing ourselves in purity and righteousness. It's a qualification. और ये बात जो हम देखते हैं फिर से कब्र में से जी उठने की बात के लिए आज सारी कलीसिया, हम हर कलीसिया को देखते हैं कि इन बातों के लिए जो है वो बातें करती है या इन बातों के विषय में अलग अलग प्रकार का जो है वो ज्ञान बांटती और हर किसी को जो है वो इस फिर से जी उठने के स्तर पर हर कोई जो चाहता है। तो यहाँ पे पौलुस इन्हीं बातों को दर्शा रहा है कि अगर तुम्हें उस समय में फिर से जी उठना है तो तुम्हें उस एक शिक्षा की या उस स्तर तक की शिक्षा की प्राप्ति बहुत जरूरी है। Read verse 17 and 18 now. और 17वां वचन कहता है, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और 18वां वचन कहता है, सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। He says, comfort each other, comfort one another with these words, because you will see the resurrection only if you have a perfect relationship with your brother and sister in your congregation, in your church. और यहाँ पे वचन कहता है, सो इन बातों से जो है एक दूसरे को शांति दिया करो। एक दूसरे को जो है हमें शांति देनी है। और ये बातों के साथ अगर हमें जो है वो जब यीशु मसीह आएंगे और फिर से अगर जब हमें कब्र में से अगर हमें जी उठना है तो हमें इन बातों को समझना जरूरी है कि हमारे साथ जो हमारा भाई बहनों के साथ जो रिश्ता है वो शांति में और शांति के साथ होना चाहिए। That is why in chapter 5 he says in verse 23-24, if you have bring a gift to the altar and remember that you have something against your brother, leave your gift at the altar, go your way, first reconcile with your brother, and then come and offer your gift. It's very, very important to have pure and good relationships. और इसलिए मत्ती का 5वां अध्याय 23वां वचन कहता है कि जब तुम तुम्हारी भेंट अगर वेदी के आगे लाओ और अगर तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति जो है वो अगर कोई भी प्रकार की अक्षमा या क्रोध है तो पहले अपने भाई के साथ जो है वो जाकर पहले मेल मिलाप कर और तेरी भेंट जो है वो तू रख कर
पहले अपने भाई से जाकर मेल मिलाप कर। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारा जो रिश्ता है अपने भाई बहनों के साथ, कलीसिया के भाई बहनों के साथ, वो अच्छा होना चाहिए। I don't know. I probably kind of bust this big bubble of this resurrection uh, thing which is practiced in the church. But the resurrection will happen to those who practice the righteousness of the Bible. That is the point. And that righteousness comes by having perfect relationships with those who call upon the name of the Lord with a pure and clean heart. और हम देखते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो फिर से जी उठने की बातों की बहुत सारी बातें जो है हम अलग अलग कलीसियाओं से जो है वो सुनते हैं, बहुत अलग अलग प्रचार को जो हम सुनते समझते हैं, पर अगर हम देखें तो फिर से जी उठने की बात में गहराई और सच्चाई वही है कि फिर से मरे हुए में से फिर से वही जी उठाएंगे जिनका जो मन है वो पूरी तरह से जो बातें पवित्र शास्त्र से जुड़ी हुई है और जिस प्रकार के उनका जो मेल जोल है अपने भाई बहनों के साथ और जो पवित्रता से, जो धार्मिकता से वो रहता है, उससे वो जी उठने की बातें जो है वो जुड़ी हुई है। So sadly, we have taken those verses in Thessalonians and made it such a big theology, but no one wants. But we have not been told that we need to qualify for that event. और यहाँ पे हमने जो वचन जो है वो जो थिस्सलुनीय से जो हमने वचनों को सीखा, वो उस वचन के द्वारा जो है वो हमने उन बातों को देखा जो उस चीज के लिए जो है वो जो तैयार करता है, और उन बातों को जो हमने सीखा जो उन परिपूर्ण या पूर्ण स्थान में आने के लिए जिन बातों के लिए वो दर्शा रहा है। All this revolves around chapter 5 of Matthew, verse 20. Except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and the Pharisees, thou shalt not enter into the kingdom of heaven. Friends, take this seriously. Keep the day of resurrection in your mind, but learn what Paul is trying to tell us. We need to qualify for that event. That's the only reason Paul is telling us this. He's not asking us to make it into a wonderful, great theology that we must go mad about. और इसलिए जब हम आज वचन देखे मत्ती का 5वां अध्याय 20वां वचन, जहाँ में हमने देखा कि यीशु मसीह कहता है कि तेरे धार्मिकता का स्तर जो है वो फरीसियों से जो है वो बढ़कर कहीं अधिक जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बात है फिर से जी उठने की बात को अगर हम जोड़ते हैं, पौलुस ने जो बातों के ऊपर जो रोशनी डाली कि किस प्रकार जो है वो हमारे अंदर वो शिक्षा हमें प्राप्त करनी है और किस प्रकार जो है वो हमें उस शुद्धता के साथ, वो पवित्र के साथ वो कैसे उस क्वालिफिकेशन को या उस प्रमाण पत्र को हमें कैसे पाना है, वो सारी बातें उनसे जुड़ती है। So friends, prepare yourselves. Make yourselves worthy vessels, full of righteousness. Pursue righteousness and hope, and don't take the promises of God for granted. और इसीलिए दोस्तों हम आपसे निवेदन करेंगे, अपने आप को जो है वो, अपने पात्र को, अपने शरीर को जो है वो पूरी तरह से जो है वो परमेश्वर के लिए जो है वो योग्य बनाओ और उसके अंदर जो है वो पवित्रता लाओ, शुद्धता लाओ और उस चीज के ऊपर जो है वो ध्यान लगाओ, उस चीज के लिए जो है वो दौड़ो, ताकि हम जो है वो पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाए और परमेश्वर की महिमा के लिए हम जो है इस्तेमाल हो। And I pray that each one of us would be a generation that sees the coming of the Lord. और हम प्रार्थना करेंगे कि हम वो युग बने जो यीशु को आता हुआ देखेगा, हम वो वंश बने जो यीशु को आता हुआ देखेगा। Praise God. Till we meet next time. Praise God. And good night. And we'll meet next Thursday. Bless you. Baruch Hashem.